Good morning, students. Today I'm going to start the new session number 1 of Unit 2, and that is getting started with spreadsheet. Students, spreadsheet is also called as Excel, and the Excel you have already studied well before in class 6th and 7th, so you all are familiar with it. But again, we are going to revise this chapter and we will learn some new things more. So whenever we talk about the basic of the computer, basic operations in the computer, spreadsheet keeps its important value. And as we know, spreadsheet or Excel is known as for its calculation. Okay, that means we can do the calculations in MS Excel, and without learning Excel, the knowledge of basic computer is quite not complete. So we, in your chapter, in your book, Cal-C of OpenOffice is used, but I am going to use Microsoft Office for you all. Now let's talk about the spreadsheet or Excel. As you know, Excel or spreadsheet is a software tool that lets one enter, calculate, manipulate and analyze set of numbers. Matlab we can do calculation, manipulation of the data, and we can do an analysis of the data as well. And first of all, let's see the environment. Let's see the Excel, how it looks like, कैसा ये दिखता है. So Excel is a grid of row and columns. That means Excel creates a worksheet, and that worksheet is a combination of row and column, and the intersection of row and column creates a cell. This one box is known as cell, and these vertical lines is called as column, and this horizontal line that I have selected is called as row. Every row is given a number, given a its unique identification, and this identification, that is also known as column number. Column number begins with A, यानी कि column की जो numbering होती है वो A से start होती है, and the last column is XFD. The name of last column is XFD. और अगर मैं आपको रो दिखाऊं तो लास्ट रो is 10,48,576 rows are there in one worksheet. And the Excel contains multiple worksheets that we can add up to 255 worksheets, and the collection of worksheet is known as workbook. समझ आया होगा कि अगर एक एक्सेल जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें हमें सामने दिखता है वर्कशीट, और मल्टीपल वर्कशीट्स के कलेक्शन को हम बोलेंगे वर्कबुक. तो मैक्सिमम एन एक्सेल कैन कंटेन 255 वर्कशीट्स. ओके, तो आपकी बुक में जो दिया है that is 65,536 rows. This is for an older version of Excel, and that I have shown you in the newer version, that is in Excel 2016. Okay, and total number of column is 1024. If it comes in your exam, you can write this. There's no problem at all. And row number begins with, as I told you, row number begins with the number 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on. So how this cell will be represented? This cell will be represented first with the column number and then row number. So if I talk about this cell, this is from this column number C and the row number 3. So this cell will become C3. If I talk about this cell, so this cell belongs to column number E.
and row number 4. So this will be E4. This cell will be E4. Okay. So this is the how we identify any of the cell in Excel. Let's see the next. This is what I already told you. The column letter. That column letter starts with A, and the last column number is XFD, and the intersection of row and column is known as cell. Cell is a basic unit of worksheet where number and whatever that we want to enter or type, that we type or enter in a cell. Cell pointer. What is cell pointer? This boundary of cell is known as cell pointer. मतलब जो भी सेल सेलेक्टेड होगा उसके चारों तरफ एक बाउंड्री हमें दिखती है, एंड दिस बाउंड्री is known as cell pointer. Current cell. The current active cell or selected cell is called as current cell. Range of cell. Range of cell means suppose this cell what I have selected is that belongs to column number F and row number 5, that is F5. And suppose I want to select more than one cells at one time, that will be treated as cell range. Okay, or we can say range of cell. So what I can write for this cell? I can write for this cell from E1 to E5. So this means I am writing about E1 cell to E5 cell. ठीक है, मतलब E1 से लेके E5 तक के सेल को अगर हमें एक साथ रिप्रेजेंट करना है तो हम इसको बोलेंगे रेंज ऑफ सेल्स. ठीक है, देखिए जैसे ही मैंने इक्वल टू लगाया तो ये रेंज ऑफ सेल्स सेलेक्ट हो गए. अगर इसमें मैं कर देता हूँ 8, इसका मतलब कि E1 सेल से लेके E8 तक के सेल को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. सो दिस E1 column E8 is known as range of cell. Next, status bar, menus and toolbar. That you know, this bottom line is known as status bar. This line, this is called toolbar, and this is menu bars. Okay. Yes, next topic is creating, opening and saving worksheet. So चलते हैं हम Excel में. This is an Excel worksheet और इसमें अब हमें देखना है कि how we will create new, save and open the existing file. तो हम सबसे पहले चलेंगे फाइल मेन्यू में और फाइल मेन्यू में हमें ऑप्शन मिलेगा न्यू के लिए. जस्ट वेट फॉर दिस इज कॉल्ड बैकस्टेज मेन्यू. यहाँ पे ऑप्शन है न्यू, ओपन, सेव एज. तो न्यू करने के लिए हम न्यू को क्लिक कर देंगे एंड इट विल आस्क फॉर अ ब्लैंक वर्कबुक. इसको क्लिक करेंगे और ब्लैंक वर्कबुक जो है वो हमारा स्टार्ट हो जाएगा. दिस इज ब्लैंक वर्कबुक. एंड वर्कबुक मैंने आपको बताया कि वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट. अगर हमें सेव करना है तो हम फाइल में जाके इसको सेव करेंगे या सेव एज करेंगे. प्रिंट करने के लिए प्रिंट करेंगे. एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करने के लिए हम ओपन को क्लिक करेंगे. दिस इज द एग्जिस्टिंग फाइल लिस्ट दैट आई हैव. और इसमें से हम किसी को भी क्लिक करेंगे और वो फाइल जो है ओपन हो जाएगा. नेक्स्ट देखते हैं क्या है. ये बेसिक सभी लोगों को पता है, न्यू, ओपन और सेव करने के लिए. सेव करने के लिए हम जाएंगे, मैंने बता दिया, सेव और सेव एज, या फिर आप यूज़ कर सकते हैं इसका शॉर्टकट CTRL+S. ठीक है, ये आपका एनवायरनमेंट दिख रहा है. तो ये कैल्सी का एनवायरनमेंट है. मैंने आपको MS एक्सेल का एनवायरनमेंट दिखाया. दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है. बहुत सारे फंक्शन जो है मोस्टली सिमिलर्स हैं.
सेविंग अ वर्कबुक, ये सभी को पता है, फाइल में जाके सेव करना है, या आप यूज कर सकते हैं Ctrl+S शॉर्टकट की सेव करने के लिए। सेव और सेव एज, आई होप कि सभी को डिफरेंस पता होगा। सेव का मतलब होता है एग्जिस्टिंग किसी भी फाइल जो हमारे सामने ओपन है उसको सेव करने के लिए। सेव एज का मतलब होता है एग्जिस्टिंग फाइल को किसी दूसरे नेम से सेव करने के लिए, मतलब टू क्रिएट अनदर कॉपी ऑफ द सेम डॉक्यूमेंट, दिस इज कॉल्ड सेव एज। क्विटिंग फ्रॉम वर्कबुक, क्विट करने का मतलब होता है एग्जिट करना, यानी कि अपना काम फिनिश करने के बाद तो हम फाइल में जाके यहाँ से क्लोज कर सकते हैं, तो ये क्लोज हो जाएगा और MS एक्सेल जो है वो बंद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है वर्किंग विद स्प्रेडशीट। आगे चलते हैं हम। नेविगेटिंग एंड सेलेक्टिंग वर्कशीट। नेविगेटिंग का मतलब होता है टू नेविगेट टू अदर सेल और लोकेशन। नेविगेट का मतलब होता है कि एक सेल से हम दूसरे सेल पे हम कैसे मूव करेंगे, दिस इज कॉल्ड नेविगेशन। तो नेविगेशन करने के लिए हम एरोज कीज को यूज कर सकते हैं, अप डाउन लेफ्ट और राइट का, या फिर हम डायरेक्टली माउस से क्लिक करके हम किसी भी दूसरे लोकेशन पे जा सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे दिस इज कॉल्ड नेम बॉक्स, यहाँ पे आप डायरेक्टली किसी भी सेल का एड्रेस लिखिए, जैसे मैं लिख रहा हूँ K5, तो क्लिक करेंगे तो जैसे ही हम एंटर की प्रेस करेंगे हमारा कर्सर जो है वो डायरेक्टली उसी सेल में मूव कर जाएगा। जैसे मैं फिर से यहाँ पे कोई दूसरा सेल दे रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा Z4, तो ये Z4 में चला जाएगा, तो दिस इज कॉल्ड नेविगेशन। तो इस तरह से हम नेविगेट कर सकते हैं नेम बॉक्स में जाके डायरेक्टली। यहाँ पे कुछ शॉर्टकट कीज हैं, ये आप ध्यान से देखिएगा और इसको जस्ट गो थ्रू इट। शॉर्टकट कीज की हमें बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। शॉर्टकट कीज को आप एक बार ध्यान से देखिए, और शॉर्टकट कीज में कोई डाउट है, कोई भी समझ में नहीं आ रहा है, तो हम इसको डिस्कस करेंगे क्लास में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सेलेक्टिंग आइटम्स इन अ शीट और स्प्रेडशीट। तो सेलेक्ट करने के लिए आप माउस से डायरेक्टली ड्रैग करके किसी भी लोकेशन को ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप शिफ्ट की और एरो की से ऐसे प्रेस करके सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब शिफ्ट की को प्रेस करके होल्ड रखेंगे और जिस डायरेक्शन में आपको मूव करना है उस डायरेक्शन में आप एरो कीज को प्रेस करेंगे तो आपका सिलेक्शन होता जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ सिलेक्शन में एक और चीज़ आपको बता दूं, अगर पूरे कॉलम को सेलेक्ट करना है तो कॉलम हेडिंग के पास जाएंगे और इसको क्लिक करेंगे तो कंप्लीट कॉलम जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा। उसी तरह से रो को, अगर हमें कंप्लीट रो को सेलेक्ट करना है तो रो हेडर के पास जाएंगे और इस ऐसे क्लिक करेंगे तो पूरी कंप्लीट रो जो है वो सेलेक्ट हो जाएगी फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। दिस इज कॉल्ड सिलेक्शन। सेलेक्टिंग अ रेंज, तो सेलेक्टिंग अ रेंज का मतलब होता है कि मैंने आपको बताया रेंज जो है दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल सेल एड्रेसेस, मतलब एक से ज़्यादा सेल के एड्रेस को जब हम लिखेंगे तो वो बन जाता है रेंज। जैसे A4 टू C7, तो A4 से लेके C7 तक के सेल आपस में सेलेक्ट हो जाएंगे, तो इसको हम बोलेंगे रेंज सिलेक्शन या रेंज ऑफ सेल्स। ठीक है, रेंज ऑफ सेल्स को आप कीबोर्ड से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कीबोर्ड से सेलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, शिफ्ट की को प्रेस करना है और एरो की के डायरेक्शन में एरो की को प्रेस करके आप मूव कर सकते हैं, तो आपका रेंज जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इंसर्टिंग सेल रोज कॉलम्स इन अ वर्कशीट। तो इंसर्ट करने के लिए जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया रोल नंबर और क्लास। अब इन दोनों के बीच में मुझे नेम लिखना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे इस कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद, यहाँ देखिए ऑप्शन आएगा इंसर्ट, तो इसको इंसर्ट को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ब्लैक कॉलम जो है वो इंसर्ट हो गया। यहाँ पे हम लिख सकते हैं नेम। उसी तरह से रो में भी अगर कोई रो के बीच में आपको रो इंसर्ट करना है, जैसे मान लो मैंने यहाँ लिख दिया 1 और यहाँ मैंने लिख दिया 3,
अब 1 और 3 के बीच में मुझे 2 को लिखना है, तो हम क्या करेंगे, एक ब्लैंक रो यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। तो राइट क्लिक करेंगे हम और यहाँ पे इंसर्ट ऑप्शन में जाएंगे और इंसर्ट से डायरेक्टली इंसर्ट हो जाएगा रो, ब्लैंक रो। तो इस तरह से हम रो या कॉलम बीच में इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक, इंसर्टिंग ब्लैंक रो मैंने बता दिया और इंसर्टिंग ब्लैंक कॉलम भी मैंने बता दिया। ठीक है, डिलीटिंग सेल रोज कॉलम्स इन अ वर्कशीट। तो डिलीट करना आसान है, जैसे इस कॉलम को मुझे डिलीट करना है तो राइट क्लिक करेंगे, यहाँ ऑप्शन आएगा डिलीट और क्लिक करिए और ये जो है डिलीट हो जाएगा। उसी तरह से हम किसी रो को भी सेलेक्ट करके ऐसे डिलीट कर सकते हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे फ्रीजिंग रोज एंड कॉलम्स और rest of the topic we will see in the next class. I hope you got the point, and if you have any doubt you are free to ask. Your queries are welcome.